Friends, welcome back to my YouTube channel English with Rimjim Kinsaria. I hope you are all healthy and safe at your homes. And today's topic will be Pied Beauty by Gerard Manley Hopkins. And it is very beautiful poem and very short and compact and very beautiful poem. First of all, I will recite the poem for you. Then we will go through its critical appreciation. Okay, let's begin with the poem. It goes as: Glory be to Pied Beauty. First of all, the title is Pied Beauty. Glory be to God for dappled things, for skies of couple color as a brinded cow, for rose molds all in stipple upon trout that swim. Fresh fire coal, chestnut falls, finches wings, landscape plotted and pieced, fold, fallow and plough. And all trades their gear and tackle and trim, all things counter, original, spare, and strange. Whatever is fickle, freckled, who knows how, in brackets, with swift, slow, sweet, sour, a dazzle dim, he fathers forth, whose beauty is past change. Praise him. What a beautiful poem. Let's have a look on its critical appreciation. In this poem, the poet seems to be appealing all of us to praise God. When you will see the poem, you will realize that he is asking us to praise the God, praise the Almighty. Okay, the poet is very grateful for the God as he has made diversity of things in this universe. And he is very, very thankful to God because he has created a lot of, diverse things in this world. In the first line of the poem, the poet says that the God should be glorified by us as he has created variegated things in the world. As the world consists multicolored and miscellaneous objects, thus there is so much beauty exists in the world. It is prismatic or colorful, not monotonous. बिल्कुल भी हम जब देखते हैं नेचर को, जब हम देखते हैं तो हमें क्या फील होता है कि एवरीथिंग इज डिफरेंट, सेम कोई चीज नहीं लगती. एंड नथिंग इज मोनोटोनस. मोनोटोनस मीन्स नथिंग इज बोरिंग एंड नथिंग इज जिससे आप फेड अप हो जाओ. ऐसा कुछ नहीं है. सब कुछ इतना डिफरेंट है, सब कुछ इतना अट्रैक्टिव है, जिससे हम लोग क्या होते हैं बहुत ज्यादा हम लोग रियलाइज करते हैं कि गॉड हैज क्रिएटेड सच अ ब्यूटी. कितनी सुंदर ब्यूटी गॉड ने क्रिएट की है. Then he says that even the sky owns couple color such as black, blue, crimson, etc. Same as brinded cow. In the same way, trout, a kind of fish, has rose moles dotted on her body, which makes the fish more attractive. When it swims in the water, the poet gives the names of such things which it consists different colors. यानी कहने का मतलब ये कि पहले क्या बोल रहे हैं, जो पोएट है हमारे वो बोल रहे हैं कि आप देखिए ब्रिंडेड काउ को देखिए, ठीक है. फिर आप देखिए एक फिश होती है ट्राउट, जो है TROUT. ट्राउट इज अ काइंड ऑफ फिश. ओके, तो वो बोल रहे हैं उसकी ब्यूटी देखिए आप, उसके ऊपर जो डॉट्स बने हुए हैं उसको देखिए आप, उसको रियलाइज कीजिए कितनी सुंदर जो है भगवान ने चीजें बनाई है. आप काउ को ले लो, आप फिश को ले लो, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग्स हैज बीन मेड बाय द गॉड. और उसको ही जो है यहाँ पे जेम हॉपकिंस जो है वो प्रेज कर रहे हैं. एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल पोम, रियली इट्स वेरी ब्यूटीफुल पोम एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोम्स ऑफ जेरड मैनली हॉपकिंस. ओके, फर्स्ट ही टॉक्स अबाउट फायर कोल as we know that a fresh fire coal seems black from outside but it's deep red from inside. As we all know कि जो ब्लैक कोल होता है वो जो क्या है बाहर से कैसा दिखता है, इट सीम्स वेरी ब्लैक फ्रॉम आउटसाइड बट इट्स इट्स डीप रेड. आप उसको तोड़ के देखेंगे, आप उसको गिरा के देखेंगे तो इट्स डीप रेड फ्रॉम इनसाइड. ओके, तो दैट इज व्हाट द पोएट वांट्स टू कन्वे कि कितनी वैरायटी है चीजों में कि आप देखेंगे बाहर से तो वो ब्लैक दिख रहा है और अंदर आप अगर उसे यू विल ब्रेक इट, यू विल सी दैट इट्स डीप रेड, क्रिम्सन डीप रेड फ्रॉम इनसाइड. ओके, in the same way, a chestnut also has multicolor in it. Chestnut also, like a fresh coal, owns different color from outside but it falls on ground. The various bright colors inside it can be seen. फिर पोइट कह रहे हैं कि आप जिस तरीके से पोइट ने कोल का एग्जाम्पल दिया ना, वो बोल रहे हैं कि कोल की तरह चेस्टनट होता है. चेस्टनट क्या होता है, आप अगर उसको
इट इज ब्राउनिश, लाइट ब्राउनिश फ्रॉम आउटसाइड, बट आप उसको जब तोड़ोगे तो अब आप देखोगे कि उसमें से मल्टी कलर्स निकल रहे हैं. तो ये उसी चीज का एग्जाम्पल दे रहे हैं. This same case is with the wings of the bird finches. When the bird finches unfurls her wings, then the various beautiful colors of wings can be seen. As chestnut, as coal, एक बर्ड होता है फिंचेस. यू कैन सी इट्स पिक्चर्स इन दी ऑन गूगल, और गूगल कर सकते हैं आप इसकी पिक्चर्स को. आप देखेंगे कि आप देखेंगे तो वो नॉर्मल कलर लग रहा है जब वो नॉर्मली बैठा हुआ है, लेकिन व्हेन एज सुन एज ही टेक्स फ्लाई, जैसे वो उड़ने लगता है तो आप देखोगे कि उसके विंग्स के जो मल्टी कलर्स हैं, दे कैन बी शोन. ओके, वो दिख सकते हैं हमें, तब हम देख सकते हैं उनके, है ना, दे विल बी शोन. एंड अनदर डैपल थिंग इन दिस यूनिवर्स, द लैंडस्केप्स आर ऑल्सो नॉट सेम, आर डिवाइडेड एंड some are divided and some are small. Thus, there is variety in the landscape also, as there are barren and or uncultivated land, and there are cultivating lands as well. Wow, क्या बोल रहे हैं पोइट. ठीक है, उसी तरीके से लैंड्स भी है. लैंड्स भी जो है वो सेम नहीं है. एज वी ऑल नो कि कुछ लैंड्स बैरन होती है, कुछ लैंड्स कल्टिवेटेड होती है, कल्टिवेटिंग होती है. यानी कि बैरन मीन्स कि वो क्या होती है, जैसे आप कह सकते हो कि जो उपजाऊ नहीं होती, जैसे आप कह सकते हो वो बैरन होती है, और वहां वो अनकल्टिवेटेड यू कैन से. तो वो लैंड्स जो है, कुछ लैंड्स वैसी होती है, कुछ जो है बहुत स्मॉल होती है, कुछ लार्ज होती है. इस टाइप से लैंड्स भी इवन जो है इवन नहीं है, सब डिफरेंट डिफरेंट है. ठीक है. फर्दर द पोएट सेज दैट मोर ओवर there are lands which are provided for industrialization. Such lands are used for equipments and well-designed machinery and mines. It reveals the fact that there is no uniformity in the nature. ये हमें ये रिवील करता है कि कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है नेचर में, यूनिफॉर्म नहीं है नेचर. नेचर इज डाइवर्स, नेचर डाइवर्स है. ठीक है. वो बोल रहे हैं कि कुछ लैंड्स जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, कुछ लैंड्स किसी और डिफरेंट रीजन के लिए यूज की जाती है. तो इस तरीके से सब चीजें जो है वो डिफरेंट है. देन द पोएट कंटिन्यूज दैट ऑल थिंग्स विच एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स आर कंट्रास्टिंग. दे आर नॉट सिमिलर इन एनी वे. They are original and individual, hence each and everything is unique in itself. ये जैसे हम नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि सब में अपना अपना टैलेंट होता है, उसी तरीके से सब चीजों, हर एक चीज में अपनी एक यूनिक चीज होती है. ठीक है. ऐसा कुछ नहीं है कि आप बोल रहे हो कि उसमें ये टैलेंट है पर मुझ में कोई टैलेंट नहीं है. इट्स नॉट लाइक दैट. आप में भी कुछ पर्टिकुलर टैलेंट है जो आपने अभी तक या तो उस चीज को आपने रियलाइज नहीं किया, उस टैलेंट को. उसी तरीके से वो बोल रहे हैं कि हर चीज यूनिक है, सब में अपना टैलेंट है, सब में अपनी मतलब एक यूनिक चीज जो है कंसिस्ट करते हैं सब लोग अपनी. ठीक है. देन द पोएट पुट्स अ rhetorical question that who know how all the things are variable and spotted. The poet feels very amazed when he thinks that some are extremely fast and some are slow. Some are very extreme. Wow, मतलब आप देखिए कि वो बोल रहे हैं कि कुछ बहुत फास्ट होते हैं एंड कुछ बहुत, फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जो हमारा खरगोश है वो क्या है, खरगोश बहुत तेज ही रन्स वेरी फास्ट और बहुत फास्ट रन करता है. लेकिन वहीं पे आप ऑपोजिट साइड में देखेंगे, उसका कॉन्ट्रास्ट देखेंगे तो जो टर्टल यू कैन से कि जो कछुआ है वो बहुत स्लो जो है चलता है. तो सब में कुछ स्लो है तो कुछ फास्ट है. इन द सेम वे some are sweet and on the other hand some are sour. If there is shine, then surely there is dark side also. Hence all the things are unique and have their own speciality. But sometimes we fail to imagine that everything is different from one another. In the last lines, the poet says that the God is the father and maker of all these beautiful things in this world. फिर वो क्या बोल रहे हैं, एम्फेसिस दे रहे हैं कि जो जितनी भी हमने वेरियस थिंग्स देखी है, ब्यूटीफुल थिंग्स देखी है, these all are created by the Almighty, by the God. God ने क्रिएट की है. The maker is the God. इन सब चीजों को जो बनाने वाला है वो गॉड है. ठीक है. But God's own beauty remains always same. It never changes as His beauty is eternal. और जो God की beauty है is eternal. वो eternal है. Though the world created by Him shifts and flow continuously, but the beauty of the God remains
ऑलवेज स्टैटिक। जो गॉड की ब्यूटी है, सब चीजें जो है कंटिन्यूसली क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, लेकिन जो गॉड की ब्यूटी है इट रिमेन्स ऑलवेज सेम, हमेशा सेम रहती है। देन द पोइट सेज प्रेज हिम, गॉड प्रेज हिम जो है लास्ट लाइन जो है अपन देख सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, प्रेज हिम, उन्हें प्रेज कीजिए आप लोग फॉर ऑल सच ब्यूटिफुल थिंग्स। ठीक है, ही ट्राइज टू इन्वोक अस टू प्रेज गॉड फॉर ऑल द ब्यूटिफुल एंड प्रेशियस थिंग्स प्रोवाइडेड बाय हिम। यहाँ पे हिम का एच आप जो है वो क्या करेंगे, बड़ा कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हम गॉड के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द एनालिसिस ऑफ द पोम। एंड अब हम क्या देखेंगे, कौन से पोएटिक क्वालिटीज यूज हुई है, या फिर हम कह सकते हैं कि कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस जो है इस पोम में यूज हुए हैं। दैट विल मेक आवर आंसर वेरी ब्यूटिफुल। ओके, और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा वो हमारे आंसर्स को। लेट्स हैव अ लुक ऑन देम ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिट्रेशन। एलिट्रेशन की स्पेलिंग में बोल देती हूँ, ALLITERATION, एलिट्रेशन। हॉपकिंस हैज यूज्ड एलिट्रेशन अ लॉट इन दिस पोम, फॉर एग्जाम्पल कपल कलर, फ्रेश फायर कोल। ठीक है, एलिट्रेशन बहुत यूज किया है उन्होंने। रेटोरिकल क्वेश्चंस यूज किए हैं, द पोएट पुट्स रेटोरिकल क्वेश्चन। रेटोरिकल क्वेश्चन जो है पुट करते हैं जीएम हॉपकिंस, और वो क्वेश्चन क्या है, हु नोज हाउ, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और एनाफोरा जो है यहाँ पे यूज हुआ है, द पोएट हैज मेड यूज ऑफ एनाफोरा, रिपीटिंग द वर्ड फॉर। एनाफोरा भी यूज किया है पोएट ने। यहाँ पे सिमिली यूज हुई है इस पोम में, द पोएट हैज यूज सिमिली इन दिस लाइन, फॉर स्काइज ऑफ कपल कलर एज अ ब्रिंडेड काउ। ठीक है, यहाँ पे सिमिली भी यूज की है पोएट ने। और हम कह सकते हैं यहाँ पे जो है इन्होंने स्प्रंग रिदम, मैंने आपको बताया था स्प्रंग रिदम के बारे में, यू कैन वॉच माय प्रीवियस वीडियो ऑन जीएम, इंट्रोडक्शन टू जीएम हॉपकिंस, उसमें हमने बताया था, डिस्कस किया था हमने, स्प्रंग रिदम डिस्कस किया था। इनस्केप अगर आपको पता करना है, या इनस्केप और इंटरेस्ट जो है वो आपको अगर पता करना है तो आप वो भी देख सकते हो, है ना। तो वो उस चीज के लिए आप देख सकते हो। और हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहती हूँ उसको डिस्कस करने से पहले, स्प्रंग रिदम को डिस्कस करने के लिए, कि उन्होंने ये कर्टल सोनेट लिखा है। कर्टल सोनेट क्या होता है, कर्टल सोनेट होता है 10.5 लाइन्स की पोम होती है। ठीक है, दिस पोम इज अ कर्टल सोनेट। ये पोम जो है वो कर्टल सोनेट है, इट हैज 10.5 लाइन्स ओनली, 10.5 लाइन्स है सिर्फ। और अब हम बात करते हैं स्प्रंग रिदम के बारे में। हॉपकिंस हैज यूज्ड स्प्रंग रिदम विच वॉज डिवेलप्ड बाय हिमसेल्फ। ठीक है, जो उन्होंने खुद ने डिवेलप किया था। स्प्रंग रिदम जो है वो, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है फॉर यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स, उसका जो है बीए के स्टूडेंट्स जो है इंग्लिश लिटरेचर वाले, उनको पता होना चाहिए कि स्प्रंग रिदम जो है वो किसने क्रिएट किया था, हु डेवलप्ड दिस स्प्रंग रिदम। G.M. Hopkins himself developed this sprung rhythm. And next, the poetic quality is binary opposites. Binary opposites जो है, use of binary opposite words such as swift, slow, sweet, sour, a dazzle, dim. ये सब क्या है, binary opposite terms हैं जो उन्होंने specifically use किए हैं किसमें, Pied Beauty में। And it's one of the beautiful poems of G.M. Hopkins. Next poem हम करेंगे Spring and Fall। और next जो है वो है हाइफन्स जो है उन्होंने यूज किए हैं। देयर इज अ ग्रेट यूज ऑफ हाइफन्स इन दिस पोम। हाइफन्स हमने जब एमिली डिकिंसन किया था तब भी हमने डिस्कस किए थे कि उन्होंने भी हाइफन्स काफी यूज किए हैं, और जो हमारे जीएम हॉपकिंस है इन्होंने भी अपनी पोम में हाइफन्स का काफी यूज किया है। सो दिस इज द क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोम Pied Beauty by G.M. Hopkins, and we will meet in the next class. Till then, take care, bye-bye, and do like and subscribe my YouTube channel, English with Rimchim Kinsaria. Thank you. Thanks a lot.